ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ 6.1। ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਟੀਜ਼ਰ i ਜਾਂ z ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 0 ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਰਿਣਾਤਮਕ ਅੰਕ ਜਾਂ ਰਿਣਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ -1 -2 -3 -4 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ 0 ਰੱਖੀ ਹੈ, 0 ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ 1 2 3 4 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। 0 ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਰਿਣਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਆਓ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲਿਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਉਲਟ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੈ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ, ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਟੇਬਲ, ਪੂਰਬ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮ। ਮੰਨ ਲਓ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜੀ ਦੱਖਣ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਕਿਰਿਆ ਦੇਵਾਂਗਾ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 326 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ, ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਸਾ ਤੋਂ 326 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਪੂਰਵ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੂਰਵ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਸ 326 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 326 ਈਸਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 700 ਰੁਪਏ ਹਾਨੀ, ਹਾਨੀ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲਾਭ, ਤਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਲਾਭ। ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਧਨਾਤਮਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਿਣਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। 0 ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁੱਲ, ਮਤਲਬ ਨਿਊਟਰਲ ਵੈਲਿਊ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਧਨਾਤਮਕ ਹੈ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਰਿਣਾਤਮਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 2000 ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ 2000 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ 0 ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 2000 ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਦੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 800 ਮੀਟਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡਾ 0 ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਣਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ -800। ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ +200। ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣਾ, ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਹੈ ਤਾਂ 700 ਰੁਪਇਆ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਲਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਗ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦਰਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ 2 ਭਾਗ ਆਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੋਨੇ ਭਾਗ ਇੱਕੋ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਇੱਕੋ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
बस इत्थे ध्यान रखो, प्लस की वड्डी तो वड्डी संख्या प्लस का 8 है, माइनस की छोटी तो छोटी संख्या माइनस का 10 है। लो तीसरा प्रश्न, मैं कागज़ के उत्ते एक संख्या रेखा बनाने लगा जी। वैसे तुसी पेंसिल दे नाल बनानी है, पर वीडियो दे विच तुहानूं स्पष्ट नज़र आवे इस करके मैं पेन यूज़ करन लगा जी। ध्यान नाल देखियो। मैं एक सीधी रेखा खिंची, इहदे उत्ते 1-1 सेंटीमीटर दूर मैं बिंदु लगान लगा। ये सारे बिंदु आपस में बराबर दूरी ते हैं, 1-1 सेंटीमीटर दूर। तो इस दे नाल मैनू संख्या रेखा के उत्ते संख्यावां दर्शाणियां सौखियां हो जाणगियां। लो थोड़ी संख्या रेखा होर लंबी खिंच दीए इस रेखा नूं। उस तरीके नाल इसके उपर भी निशान लगा लवो। एक 1 सेंटीमीटर दूर। हुण इस तरह करो जी, किते जे इत्थे विचकार जे एक मुल लै लो जी तुसी 0 0 0 के खब्बे हत्थ -1 -2, तो मुल छोटे होंदे जाणगे खब्बे हत्थ -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। बहुत है जी। तीर का निशान दसदा है कि यही क्रम अगे चलता जाएगा। तो 0 के सज्जे हत्थ बराबर दूरी उत्ते प्लस का 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 6 7 8 9 10 11 अप टू 100 ऑन। ये क्रम इस तरीके नाल चलता जाएगा। लो हुण नोट करो, जिहड़ा साडा पहला भाग है, असी प्लस के 5 नूं संख्या रेखा उत्ते दर्शाना है। प्लस के 5 तो 0 के सज्जे हत्थ देखो जी, प्लस का 5 ये पिया, तो तुसी इहदे उत्ते तीर का निशान लगा के लिख दवो प्लस का 5। तुहाडा उत्तर आ चुकिया है। ये पहले पार्ट का। बी पार्ट है -10 -10। तो 0 के खब्बे हत्थ देखो, तुहाडी रकम माइनस वाली कित्थे पई है जी? 0 के खब्बे हत्थ आ पिया जी -10। इहदे उत्ते हल्का जिहा एक चक्कर लगाओ ताकि सानू पता लगे साडा बिंदु कित्थे है। -10 तुहाडा उत्तर आ चुकिया पार्ट बी। तीसरा पार्ट है प्लस का 8। तो 0 के सज्जे हत्थ है प्लस वाली रकम लभ गया जी मैनू प्लस का 8। सी पार्ट आंसर आ चुकिया। डी पार्ट है -1। 0 के खब्बे हत्थ -1 आंसर आ चुके हैं डी पार्ट का। ई पार्ट -6 -6 लभो जी 0 के खब्बे हत्थ, ये पिया जी बिंदु -6 आंसर। ये ई पार्ट है जी। आओ अगला प्रश्न करिए। चौथा प्रश्न है, सामने चित्र विच एक सीधी खड़ी रेखा एक सीधी खड़ी संख्या रेखा दर्शाई गई है। लो जी, ये संख्या रेखा है, विचकार किते भी बिंदु इन्होंने कैपिटल ओ लिया है, जिसका मुल असी 0 मनांगे। ये संपूर्ण संख्यावां नूं दर्शाउंदी है। इस रेखा नूं देखो अते हेठां लिखे बिंदुओं के स्थान पता करो। चलो आपां इस तरह करते हैं, उपर वाले पासे प्लस वाली संख्यावां नाल मुल दर्शाने जी। 1 2 3 4 5 6 7। हेठां वाले पासे माइनस के नाल -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 ते -10। कहना जी जेकर बिंदु डी संपूर्ण संख्या प्लस का 8 है, देखो डी का मुल साडा वाकई प्लस का 8 है, तो
तो -8 वाला बिंदु किहड़ा होवेगा? देखियो -8 संख्या रेखा के सामने किहड़ा बिंदु है? F। तो इहदा उत्तर आ गया जी F। आंसर आ चुकिया, बिंदु F होवेगा। कि G एक ऋणात्मक संपूर्ण संख्या है? G का मुल -6 है, बिल्कुल ठीक है जी, ऋणात्मक है। ऐसा मैं लिख देना जी, उत्तर ऋणात्मक है। कितना मुल है जी? -6 है, क्योंकि G का मुल -6 है, इस करके ऋणात्मक है। देखो जिथे माइनस का निशान लग गया वो मुल ऋणात्मक होंदा है। बी पार्ट का आंसर। बिंदु B ਅਤੇ E ਦੇ संगत संपूर्ण संख्या लिखो। बिंदु B ਦੇ सामने देखो जी प्लस का 4 है, लिखो जिहड़ा बिंदु B है ये प्लस के 4 नूं दर्शा रहा है। जिहड़ा बिंदु E है ये किस नूं दर्शा रहा जी? बिंदु E -10 नूं। कहता इस संख्या रेखा उत्ते अंकित बिंदुओं विचों किहड़ा मुल सब तो घट है? देखो माइनस का मुल जदों कोई चीज़ घट रही है तो सब तो घट के मुल सब तो छोटा किहड़ा मिलिया? -10। तो किहड़े बिंदु का मुल सब तो घट है? बिंदु E का मुल सब तो घट है जी। मैं इत्थे लिखन लगा E बिंदु -10 सब तो घट मुल। तो ये तुहाडा डी भाग का उत्तर है जी। हुण असीं करन लगे हैं जी चौथे प्रश्न का ई भाग। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਘਟਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਮੁੱਲ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਮੁੱਲ, ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਘਟਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਡੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਲੱਸ ਦਾ 8 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਸੀ ਪਲੱਸ ਦਾ 5, ਫਿਰ ਬੀ ਪਲੱਸ ਦਾ 4। ਆਓ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਦੇ ਹੋਏ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਘਟਦੇ क्रम विच सब तो पहला जी बिंदु डी का मुल है जी प्लस का 8, हेठा मुल भी लिख लो। उस तो घट मुल है जी बिंदु सी का, ये प्लस का 5। फिर सी तो बाद घट मुल है जी साढ़े को बी प्लस का 4, बी प्लस का 4। बी तो बाद ए प्लस का 2, ए तो बाद साढ़े को आ रहा जी ओ, बिंदु ओ जिहड़ा कि 0 0 नूं दर्शा रहा है। फिर इस तो बाद ओ तो बाद एच जिहड़ा -2 नूं दर्शा रहा है, लिख देना जी मैं बिंदु एच, एदा मुल -2 है। एच तो बाद जी का मुल -6 है। उस बाद एफ का मुल -8 है। उस बाद ई का मुल -10 है। ये आंसर आ गया जी मुल घटते क्रम विच। आओ अगला प्रश्न करिए। हुण अगले प्रश्न सानूं दिता है जी साल के विशेष दिन भारत के 5 स्थानों के तापमानों की सूची हेठां दिती है। भारत के अलग अलग स्थानों का इन्हां ने तापमान माप लिया, उन्हां दी सूची देती ते सानूं पुछया देखो की है। कहता जी इन्हां स्थानों के तापमानों नूं संपूर्ण संख्यावां के रूप में खाली थावां विच भरो। ये खाली थावां भरनी है जी। देखो जिवें सियाचिन का तापमान 0 डिग्री तो 10 डिग्री सैल्सीयस हेठ है, यानी कि 0 तो 10 घट है, तो तुसीं इहनूं लिखोगे -10 डिग्री, क्योंकि 0 चों 10 घटाओगे। आ देखो 0 चों तुसीं 10 घटाने है तो की करोगे? न्यूमेरिकली वड्डे चों छोटा घटाओ। न्यूमेरिकली वड्डा मतलब बिना निशाना तो किहड़ा वड्डा है? निशान लको लो 10 का, माइनस लको लो, तो 10 चों 0 घटाओगे 10 रह गया, वड्डे का निशान लग जाता न्यूमेरिकली वड्डे का, यानी कि बिना निशाना तो किहड़ा वड्डा है, तो -10 बन जाने हैं। हुण शिमला 0 डिग्री सैल्सीयस तो 2 डिग्री हेठा, यानी कि -2 डिग्री। 0 डिग्री सैल्सीयस तो 30 डिग्री उपर है, यानी कि मुल वधिया होया प्लस का 30 डिग्री। ये है जी 20 डिग्री सैल्सीयस उपर प्लस का 20 डिग्री। 0 डिग्री तो 5 डिग्री सैल्सीयस हेठा, यानी कि -5 डिग्री। आओ हुण संख्या रेखा तो दर्शा दिए। लो देखियो ध्यान नाल, 0 तो बाद छोटियां छोटियां निशानियां देखो जी, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 ते 5 इस तरीके नाल मुल लिखिया होया। जे कहो तो मैं लिख देना 1 2 3 4 ते 5। नोट करो
माइनस का 10 डिग्री कित्थे है जी, माइनस 10 डिग्री आ पिया। तो ये तापमान है जी सियाचिन का, सियाचिन -10। माइनस का 2 डिग्री कित्थे है जी, शिमले का। शिमले का देखो -2 कित्थे है, इत्थे आ गया -1, इत्थे आ गया जी -2। बड़ा बरीक जिहा है, ध्यान नाल देखो। -5 तो खब्बे हत्थ, सॉरी 0 के खब्बे हत्थ माइनस का 1 उहदे नाल माइनस का 2, ये वाला मुल। तो ये शिमले का तापमान शो कर रहा जी, शिमला -2 डिग्री सैल्सीयस। हुण नोट करो, इस तरीके नाल असी अहमदाबाद का तापमान देखण लगे आ, +30 डिग्री। ये पिया जी +30 डिग्री, इत्थे आ वैल्यू। ये है जी अहमदाबाद। दिल्ली का तापमान +20 डिग्री, लो जी ये पिया 20, ये दिल्ली का तापमान है जी। फिर श्रीनगर -5 डिग्री, -5 देखो जी 0 के खब्बे हत्थ आ पिया जी, ये वाला तापमान श्रीनगर। आपां -5 डिग्री एरो जा पाता जी, ये तीर का निशान लगाता, श्रीनगर। कहता जी उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा के उत्ते उन्हों के तापमानों के सामने लिखो। ये आप लिखते जी, देखो पहला प्रश्न सीगा इन्हों के तापमानों संपूर्ण संख्यावां के रूप में खाली थावां भरो, भरता। दूजा प्रश्न सी संख्या रेखा के उत्ते ये आप स्थान दर्शाने सी कि किहड़े स्थान का तापमान कितना है, सानू संख्या रेखा देख के पता लग जाए। 0 के खब्बे हत्थ माइनस वाली संख्यावां, 0 के सज्जे हत्थ प्लस वाली संख्यावां। तो याद रखो हरेक वड्डे खाने नूं छोटे छोटे 5 खानिਆਂ 'ਚ वंडिया। ਇਹਦਾ मतलब 0 के सज्जे हत्थ छोटा खाना 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर इत्थे 6, इत्थे 6 आना सी, इत्थे 7, इत्थे 8, इत्थे 9, फिर 10। इस तरीके नाल कहंदा जी किहड़ा स्थान सब तो ठंडा है। देखो माइनस विच सब तो घट तापमान किहदा है, सियाचिन का। तो लिख दिओ जी सियाचिन सब तो ठंडा है, इसका तापमान -10 डिग्री सैल्सीयस है। उन्होंने स्थानों के नाम लिखो जिन्हों का तापमान 10 डिग्री सैल्सीयस तो उपर है। प्लस के 10 का मुल देखो जी, इस तो वड्डे किहदे है, दिल्ली ते अहमदाबाद के तापमान। तो लिख दिओ दिल्ली तापमान कितना जी, +20 डिग्री सैल्सीयस। अहमदाबाद तापमान कितना है, +30 डिग्री सैल्सीयस। ये तो आंसर आ गया। हुण आपां करन लगे जी प्रश्न 6वां। कहंदा जी हेठां दिते जोड़ियां विचों किहड़ी संख्या संख्या रेखा उत्ते दूसरी संख्या के सज्जे पासे स्थित है। लो इसलिए आपां पहला संख्या रेखा का कंसैप्ट दोहरा लीए। एक छोटा जिहा नोट याद रखियो, संख्या रेखा फुट्टे दे नाल या स्केल दे नाल तुसी एक रेखा बना लेनी है। विचाले जे किते 0 रख देना है बिंदु, 0 के सज्जे पासे तुसी 1-1 सेंटीमीटर दूर निशान लगा लेने हैं, 1-1 सेंटीमीटर दूर। वैसे तुहाडी इच्छा है 1 सेंटीमीटर दूर निशान नहीं लगाने तो आधा सेंटीमीटर या जो मर्जी इकाई तुसी आपदी रख लो, 1 इंच दूर रख लो, आधा इंच दूर रख लो, आधा सेंटीमीटर दूर रख लो, तुहाडी इच्छा अनुसार। 0 के सज्जे हत्थ 1 2 3 4 5 अप टू 100 ऑन संख्यावां का क्रम ये चलता जाएगा। 0 के खब्बे हत्थ -1 -2 -3 -4 अप टू 100 ऑन, ये संख्यावां का क्रम खब्बे हत्थ उस तरह चलता जाएगा। हुण नोट करो 0 के सज्जे पासे पहलां आपां देखते हैं प्लस का 3 है तो प्लस का 1 है। 1 ते 3 दे विचों तुसीं इन्हां दे विचकार जाके खड़ जाओ, 1 ते 3 दे विचकार इत्थे किते तुहाडे सज्जे पासे कौन है 3, खब्बे पासे कौन है 2। मान लो मैं इस थां ते जाके खड़ गया तो मेरे सज्जे पासे 3 है तो खब्बे हत्थ है जी 1। वड्डी किहड़ी संख्या है 3, यानी कि सज्जे पासे वाली संख्या वड्डी हुंदी है। इस तरीके नाल मान लो मैं 0 ते 5 इन्हां विचकार देखना किहड़ी रकम वड्डी है। 0 ते 5 चलो जी,
0 ਤੇ 5 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ। ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ 0, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਕੌਣ ਹੈ 5 ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਤਾਂ 0 ਤੇ 5 ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ। ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਸੰਖਿਆ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ -4 ਤੇ 0 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, -4 ਤੇ 0 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ -4, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਲ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ -14 ਤੇ -100, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ -14 ਫਿਰ -15, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ -16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 99 ਫਿਰ 100 ਤੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਹੈ -14 ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਹੈ -100, ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ -14। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 100 ਤੇ 14 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ, ਪਲੱਸ ਦਾ 100 ਤੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 14, ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੱਸ ਦਾ 14 ਆਏਗਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਦਾ 100, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਪਲੱਸ ਦਾ 14 ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਕੌਣ ਹੈ ਪਲੱਸ ਦਾ 100, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲਓ, ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਜੀ 2 ਤੇ 9। ਅੱਛਾ, 2 ਤੇ 9 ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ? 9 ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 9 ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਦਰਸਾਓ ਤਾਂ 9 ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ, -3 ਤੇ -8। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ 0 ਵੱਲੋਂ ਤੁਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ -3 ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ -1 -2 -3, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਜਾਓਗੇ -4 -5 -6 -7 ਤੇ ਫਿਰ ਆਏਗਾ -8। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਹੈ -3, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਹੈ -8। ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ -3 ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ -3 ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਆਨਸਰ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਪਾਰਟ, 0 ਤੇ -1, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਹੈ? 0 ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ 0 ਆਈ ਫਿਰ -1, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਹੈ 0, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਹੈ -1, ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਹੈ, 0 ਵੱਡਾ ਹੈ। 0 ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 0 ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਆਨਸਰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਭਾਗ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਐਫ ਪਾਰਟ ਹੈ 1 ਤੇ -100। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ 0 ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਡੀ ਹੋਗੀ। ਜੇ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ 1 0 ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 100 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਖਿਆ 1 ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਫ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਆਨਸਰ। ਲੋ, ਹੁਣ 7ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੋ। 0 ਤੇ -7 ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ।
अच्छा नोट करो, ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੀ 0 1 2 3 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ -1 2 -2 -3 -4 -5 -6 ਤੇ -7 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ? ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੀਆਂ 0 ਤੋਂ -7 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਤਾਂ 0 ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ -1 -2 -3 -4 -5 ਤੇ -6। 0 नहीं शामिल करना तो -7 नहीं शामिल करना, क्योंकि इसने क्या 0 तो -7 के विचकार। ये थोड़ा आंसर आ गया। इस तरीके नाल देखो बी पार्ट है -4 और 4 विचकार संपूर्ण संख्यावां। अच्छा देखो, चलो आप जिवें -4 तो लैके +4 के विचकार लिखना शुरू करते हैं। -4 तो सज्जे पासे वाल वधिए, पहला -3 फिर -2 -1 0 1 2 ते 3 तक। आंसर आ गया जी तुहाडा। इस तरीके नाल तुसीं बाकी 2 भाग खुद कर सकते हो। एक सी भाग देख लो, -8 अते -15 विचकार संपूर्ण संख्यावां। देखियो -8 तो -15 चों -8 हो गया वड्डा, -8 तो -15 वाल वधदे आ, -9 -10 -11 -12 -13 ते -14। ये तुहाडा उत्तर आ गया जी। उस बाद तुहाडा 8वां प्रश्न है, -20 तो वड्डियां 4 ऋणात्मक संपूर्ण संख्यावां लिखो। -20 तो वड्डियां लिखनियां। देखो जे संख्या रेखा के उत्ते तुसीं देखोगे -20 दे तुहानूं सज्जे पासे वड्डे मुल मिलणगे, तो -20 तो सज्जे पासे वधना है -19 -18। इस तरह गिणती लिखांगे, यानी कि -20 तो वड्डियां 4 ऋणात्मक संपूर्ण संख्यावां -19 -18 -17 ते -16। आंसर आ गया जी। इस तरीके नाल -10 तो छोटियां, जे छोटियां संख्यावां चाहिए तो असी खब्बे पासे वधांगे। -10 के खब्बे पासे देखो की आता है -11 -12। इस तरीके नाल तो -11 -12 -13 ते -14। आंसर आ गया जी। हेठ लिखिया लई सच या झूठ लिखो। जेकर कथन झूठ है तो सच दसना है जी। 9वां प्रश्न है, कहना संख्या रेखा उत्ते -8 -10 के सज्जे पासे होंदी है। चेक करके देखिए। तो सानू संख्यावां की तुलना करनी पैनी है। 9वें का ए पार्ट कहना -8 -10 के सज्जे पासे होंदा है। आओ आप संख्या रेखा बना ही लें। 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ये पिया जी -8 तो ये पिया जी -10। नोट करो, तुसी इन्हां दे विचकार जाके खड़ जाओ। ये कह रहा है कि जिहड़ा -8 है ये -10 के सज्जे पासे है। तो हुण पहलां आपां विचकार खड़े सी, हुण -10 ते चलदे हैं। इत्थे जाके खड़ो। वो कह रहा जी -8 मुल है -10 के सज्जे पासे है। मान लो तुसीं इत्थे खड़े हो -10 के उत्ते, तो -10 के सज्जे पासे -8 है। सही है, बिल्कुल ठीक है, सज्जे पासे ही है -8। इस करके तुहाडा ए ऑप्शन सही है। यानी कि सच है या झूठ है, तो आप सच वर्ड लिख लेंगे, सच है। बी पार्ट देखो, कहना जी -100 -50 के सज्जे पासे होंदा है। देखो जो संख्या रेखा लिखोगे 0, फिर गिनती पूरी करोगे किते जाके -50 आएगा, फिर उस बाद खब्बे हथ वधोगे -100 आएगा। ये कहना जी -100 -50 के सज्जे पासे है। हुण मैं इत्थे आके खड़ गया -50 ते, -50 दे
सज्जा पासा किधर है, जिधर वड्डे मुल है, सिफर वल जाते हैं। माइनस का 100 की है, खब्बे पासे है, तो ये कही जाता जी सज्जे पासे, तो माइनस का 100 तो खब्बे पासे है, -100 तो खब्बे पासे है, इस करके ये झूठ आ गया। सी पार्ट देखिए, कहता सब तो छोटी ऋणात्मक संपूर्ण संख्या -1 है। वो संपूर्ण संख्यावां सब तो छोटी ऋणात्मक संपूर्ण संख्या, ये तो समूह चलता ही जाता है, सब तो छोटी ऋणात्मक संपूर्ण संख्या लभी नहीं जा सकती, तो झूठ हो गया। सब तो छोटी ऋणात्मक संपूर्ण संख्या नहीं लभ सकते, सगों -1 तो इन्हां सारिਆਂ चों वड्डी संख्या होंदी है ऋणात्मक। अच्छा देखियो जी डी पार्ट, कहना -26 संपूर्ण संख्या -25 तो वड्डी है। लो -26 तो -25, जे संख्या रेखा ते दर्शाओगे तो की होएगा जी, पहला 0 फिर -1, इस तरह -2 तो लैके गिनती करते करते -25 फिर -26। इन्हां दे विचकार जाके खड़ो, तुहाडे सज्जे पासे कौन है -25, खब्बे पासे कौन है -26, फिर किहड़ी संख्या वड्डी होगी सज्जे पासे, तो इन्हें की किया -26 वड्डा है, सो ये हो गया जी झूठ। असल दे विच -25 वड्डा है, जिहड़ी संख्या सज्जे पासे है। लो 10वां प्रश्न, कहना जी कि संख्या रेखा खिंचो और हेठां लिखे प्रश्नों के उत्तर दिओ। देखते हैं आप करते हैं। 10वां, चलो मैं एक अंदाजे नाल संख्या रेखा ड्रॉ करन लगा। 0 1 2 3 4, खब्बे हथ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 5 6। पहला भाग देखो, कहना जेकर असी -2 के सज्जे पासे -2 के सज्जे पासे 4 कदम चलीए, मैं इत्थे रुकिया हुआ सी -2 ते, मैं सज्जे पासे जाना 4 कदम, पहला कदम दूजा कदम तीजा कदम 4 कदम, तो मेरा उत्तर कितना आ जाऊगा जी, हाँ जी -2 के सज्जे पासे 4 कदम जाण नाल प्राप्त संख्या, किहड़ी संख्या मिल गई मैनू +2। ठीक है जी, सौखा हो गया ना क्वेश्चन कितना, संख्या रेखा बना के। बी पार्ट देखो, कहता जेकर असी 1 के खब्बे पासे 5 कदम चलीए, 1 के उत्ते खड़े हुए हैं, इत्थे खब्बे पासे जाना 5 कदम, पहला दूजा तीजा चौथा 5वां, तो सानू किहड़ी संख्या मिलूगी -4 लिख दो। -1 के खब्बे पासे 5 कदम जान नाल प्राप्त संख्या -4 आंसर। हुण इस तरीके नाल सी पार्ट, कहंदा असी संख्या रेखा उत्ते -8 के उत्ते हाँ, तो -13 के उत्ते पहुँचण लई सानू किहड़ी दिशा वल चलना पेगा, आ नोट करियो। -2 9 -10 -11 -12 तो -13, -8 उत्ते तो खड़े हो, तो पहुँचना तुसी -13 वाल, तो किहड़े पासे तुहानू मुड़ना पेगा, खब्बे कि सज्जे, खब्बे पासे मुड़ना पेगा ना। लो लिख दिए, -8 तो -13 उत्ते पुज्जण लई -8 दे खब्बे पासे जाना पवेगा। जे तो छोटी संख्या वाल जाना है तो खब्बे हथ जाओ, वड्डी संख्या वाल जाना है सज्जे हथ जाओ। तो देखो माइनस दी संख्यावां दे मुल घटते जा रहे हैं, -9 -10 -11 -12 -13। डी पार्ट कहना जेकर असी संख्या रेखा उत्ते -6 उत्ते हाँ, देखियो संख्या रेखा के उत्ते -6 उत्ते इत्थे खड़े हाँ, तो -1 ते पहुँचण लई किहड़ी दिशा जाना है, -6 तो खड़े हो इत्थे पहुँचना है -1 दे उत्ते इत्थे, तो किहड़ी दिशा च गया मैं, सज्जे पासे। लो जी लिख दिए उत्तर।
-6 ਤੋਂ -1 ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ -6 ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅੰਸ। किस तरह लगे जी प्रश्न? सौखे है ना? एक बार इन्हां दी प्रैक्टिस जरूर कर लियो।